Even the regional center of Srinagar is also grown from 1,000 to 46,000 today enrolled. And there are about 12,000 has been registered to take the, they are supposed to take the degrees now, fresh degrees, but only 214 students has been presented today, and it's the most welcoming feature. 60,000 students are in their constituent and affiliated colleges. About 1 lakh plus the students are online enrollment. So the strength, when I noticed, so such a strength making South University be more strong. So now IGNOU is also in a short span from 1985 onwards its journey. So it has transformed into a giant in reaching the unreached population. So that's what my value is. While sitting on the dais, I came to know that there are around 46 regional centers throughout the country. And then one of the, I can say that the best regional center is in Kashmir, presently being led by our dynamic leader, my colleague from the University of Kashmir, Dr. Shahnawaz sir. हम बढ़ेंगे हमारे अवॉर्डीज की ओर और सरकारी थोड़ा पीछे थोड़ा इधर सर फरजाना यावर फरजाना यावर सफिया हसन इधर बेटा यहाँ से अरबीना नजीर अरबीना नजीर चलिए इंशाअल्लाह के बाद अक्सा मजीद और मास्टर्स प्रोग्राम का आखिरी है तिनके भी इस चमन के एक दिन गुलाब होंगे हम कामयाब होंगे हम कामयाब होंगे हो लाख तेज धारे पहुंचेंगे हम किनारे करते हैं ये इशारे बढ़ते कदम हमारे देखें है जो वतन ने पूरे वो ख्वाब होंगे हम कामयाब होंगे हम कामयाब होंगे नफरत मिटाएंगे हम उल्फत जगाएंगे हम रूठे मनाएंगे हम जीना सिखाएंगे हम इंसानियत के हर सू बजते रबाब होंगे हम कामयाब होंगे हम कामयाब होंगे और हम कामयाब जरूर होंगे। First of all, I have to congratulate all the graduating students from IGNOU because the best efforts and self-motivation has led them to acquire their degrees, and I hope this particular degree enable them to contribute for the betterment of the nation, and they themselves also can grow in the system, and also they make them to not only empower themselves, they also empower the nation. And other thing, it is being the 25th year of the regional center, and I'll congratulate them for now they are going to have their own independent building and independent line, and they can create a better infrastructure as it grown from 1,000 students in the first year of its inception to today 46,000. The good enrollment has been taken place, especially the women folk which making use of that particular IGNOU programs more effectively. Probably they are not only contributing to the society, especially their families, they are able to make them to get educated. Once a family members are educated, so they know their responsibilities very well and how to live in with the integrity and as well as with the society, and also for contributing the world peace is one of the important aspect. So the life which will give to them is not only
to be part, how to be part with the fraternity, and also respecting each other's faiths and beliefs. That is one of the important aspect. To coexistence is one of the things that we know. The country is known to be unity in diversity. Though we have more diverse cultures are there, still we go each other based on the humane sensitivity and the feelings everyone is having. And these graduates will further grow in their future endeavors, and also they make their career much more in better way, and the economy of the country also they can improve. आज का जो 37th रीजनल कन्वोकेशन रीजनल सेंटर श्रीनगर ने गांधी भवन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इग्नू का जो आज का जो कन्वोकेशन था वो मेन कैंपस इग्नू न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकर जी चीफ गेस्ट थे। और उसके साथ साथ इग्नू का जो कन्वोकेशन है ये कुछ सिलेक्टेड रीजनल सेंटर्स में भी ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें से इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर जो है वहाँ पर भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि रीजनल सेंटर श्रीनगर एक बहुत बड़ा रीजनल सेंटर है इग्नू का पूरे मुल्क में। जो रीजनल सेंटर श्रीनगर का जो कन्वोकेशन यहाँ पर श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें 9616 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे इस कन्वोकेशन में डिग्री लेने के लिए। उनमें से 214 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनने ऑप्ट ये किया था, जिनने ये ऑप्शन दी थी कि वो कन्वोकेशन के दौरान ही डिग्री रिसीव करेंगे। तो हमने उनको इस कन्वोकेशन में डिग्री दे दी। और जो यहाँ की जो कन्वोकेशन हुई इसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे, जो वाइस चांसलर ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर रविंद्र नाथ जी थे, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट वदी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ द कश्मीर प्रोफेसर नसीर इकबाल थे। रीजनल सेंटर श्रीनगर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो कन्वोकेशन यहाँ पर कंडक्ट करना ये एक खुशी की बात है इस रीजन के लिए और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, क्योंकि जो रीजनल सेंटर श्रीनगर है इसका जुरिस्डिक्शन ओवर वैली ऑफ कश्मीर एंड द यूटी ऑफ लद्दाख है। रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी 46 ऐसे स्टडी सेंटर्स है जिनके थ्रू एजुकेशन की जो सर्विसेज, इग्नू की जो एजुकेशन की जो सर्विसेज है वो कश्मीर वैली और यूटी ऑफ लद्दाख तक पहुंचा रहा है। उसमें 4000 के करीब जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स है वो ये तालीम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा पार्ट टाइम स्टाफ 300 के करीब है जो इग्नू की जो एजुकेशनल सर्विसेज है उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स है, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स है, उनका एक पार्ट है। मैं जिक्र करना चाहूँगा ई विद्या भारती का। ई विद्या भारती एक ऐसा प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिनमें हम 19 अफ्रीकन कंट्रीज तक एजुकेशन की जो सहूलियात है वो पहुँचा रहे हैं। उसमें रीजनल सेंटर श्रीनगर को भी कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं ऑपरेट करने के लिए। तो रीजनल सेंटर श्रीनगर उन 19 अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये इग्नू के प्रोग्राम्स ऑप्ट करते हैं तो उन तक हम एजुकेशन की सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। इग्नू जो है वो डिजी लॉकर पे आप लाइव है, तो डिजी लॉकर के हवाले से आप लर्नर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस कन्वोकेशन के मतलब में हमने ऐसा किया, जो ऑनरेबल हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के, उन्होंने डिजी लॉकर के माध्यम से जो डिग्रीज है वो डिस्ट्रीब्यूट की। डिजी लॉकर में बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टूडेंट्स थे इस कन्वोकेशन के लिए उनकी डिग्रीज डिजी लॉकर के जो अकाउंट्स है उन तक पहुंचाई। जिस किसी स्टूडेंट ने वो डिजी लॉकर में जो अकाउंट है वो क्रिएट किया होगा तो उसको वो डिग्री रियल टाइम पे मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर पाएगा, उसको यूज़ कर पाएगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर उनके पास अभी डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो उनको डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन करना इग्नू ने लास्ट फ्यू कन्वोकेशंस के थ्रू ऐसे शुरू किया है। और इसमें इस कन्वोकेशन के थ्रू भी जितने भी हमारे एलिजिबल लर्नर्स थे, एलिजिबल अवार्डीज थे, उन तक हमने डिजी लॉकर में ये सभी डिग्री जो है वो दस्तयाब की।